So we'll just wait for 2 more minutes, then we'll start. 4, 5. Should we start, Janvi? Yes. So welcome everyone. This workshop is for Infinity Reports, and I'm going to explain you step by step that how you can create a report, how you can save the report, and everything related to it. So if you have any query or anything, any doubt, we will solve today. So just give you brief information before starting. So we launched the Infinity Reports on 10th of August, just last week, and it is available in your all your accounts. You can check it out. Uh, it's available. So why did we create the report? So basically, different operations, the different pharmacies have different sizes, different operations, and different types like clinical, hospital. So they have different types of requests according to their business needs, and to cater this problem, we have created these infinity reports to give the controls in your hands, so you can create any report however you want, right? So I'll just tell you that in starting it will look little bit hard to to make a report. So we will always be here to help you, so you can start and you can use it easily, right? So everyone is comfortable in English, right? कोई ऐसा है जिसको Yes. हिंदी में चाहिए? Okay, so we'll keep the conversation in English. Okay. So I'll just share my screen and we'll just start the पूजन जी demo. हिंदी में सर पूजन जी हाँ सर, ठीक है, मैं साथ में रखता हूँ सर, कोई बात नहीं। हाँ सर, हिंदी हम वालों साथ। का भी ध्यान रखो थोड़ा हाँ सर, कोई बात नहीं सर, साथ में रखते हैं। ओके। So to access the report, Poojan, your voice is cracking. Pujan, your internet is not stable. Sir, your voice is breaking, sir. okay, wait.
Hello, am I audible now? Yes, Pujan. Okay, sorry for the inconvenience. Okay, so in the reports tab, or directly going to the Sahay, you can access the Infinity reports, right? So here first you will have to select what type of report you want to create, right? तो सबसे पहले रिपोर्ट्स के जो अभी जो रिपोर्ट्स का पेज है उसमें जाके आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे बाहर ही कि आप कोई भी रिपोर्ट यहाँ से सीधा उसके पेज में जा सकते हो, राइट? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू सिलेक्ट विच मॉड्यूल यू वांट टू make the report for, right? So sales, wholesale and returns related. Then there is a purchase and purchase return related. Then item ledger, stock or party ledger related, and there is an advanced report where multiple modules will be considered together, right? So we'll start with the sales. So after selecting the first option, you will have to select in that what type of transaction you do you want, right? So we'll just go with the sales, right? So after you select this, you will get this type of screen, right? Just okay, right. So there is a 3 box, right? So first is a group by, second is summarize, and third is a filter, right? So we'll start with the group by. So in the group by, the columns which are categorical column, right? Categorical matlab means the columns which don't have numbers, right? Let's say your staff name, item category, right? Payment method, right? These are the columns which don't have numbers, or the you cannot basically multiply or sum these values, right? So we will add it into group by column. इन हिंदी आई विल जस्ट से. तो ग्रुप बाय कॉलम में ऐसी कॉलम्स आएगी कि जो कैटेगरिकल कॉलम्स होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो गया, या फिर सॉल्ट कंटेंट हो गया, पेमेंट मेथड हो गया. ये ऐसी कॉलम्स होती है जिसकी जो वैल्यू है उसको आप सम नहीं कर सकते, उसको प्लस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. वैसी कैटेगरिकल कॉलम्स होती है, तो वो हम ग्रुप बाय में रखेंगे, ठीक है? फिर होता है समराइज. समराइज ऐसी होती है कॉलम्स जिसकी वैल्यू आपको एक्चुअली चाहिए, जिसका डेटा आपको चाहिए. आपको जैसे कि हर एक स्टाफ का टोटल इनवॉइस अमाउंट चाहिए लास्ट वीक का, ठीक है? तो जो इनवॉइस अमाउंट है वो जो वैल्यू है वो हो गई समराइज में. सो बेसिकली जिसकी वैल्यू को आप एरिथमेटिक ऑपरेशंस, मैथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे उसको प्लस कर सकते हैं, किसी से माइनस कर सकते हैं, उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, वैसी सभी वैल्यूज, राइट? सो इन द समराइज कॉलम आई जस्ट say in the Hindi also, in the summarized column, the columns whose value can be multiplied, minus, or like you can do the mathematical operations on these values. You can find the percentage, everything, right? Those columns will be added into summarize. And the last is the filter. So whatever data you select, right? Out of that data, if you want to include certain data or you want to exclude particular data, right? So if you want to include or exclude some of the rows, some of the records, then you can use filter. You can filter out those records from your report, right? Then there's a date. So you can select the date range what you want, right? And then we will have the preview, right? So I am going to create one report, but before that, until now, if any of you have any question. Okay, let's create one report, right? So what I want is I want weekly staff wise
payment method wise, total invoice amount and total discount, right? तो मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे वीकली स्टाफ वाइज पेमेंट वाइज टोटल कितने रुपए का इनवॉइस बना है और सामने कितना डिस्काउंट मिला है वो चाहिए, ठीक है? तो वो हम रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए, Your voice is breaking. हेलो, Your voice is not clear, sir. ओके, नाउ, हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Yeah, okay, sir. Yes. Yeah, Okay, now okay. I am audible, sir. Okay, so we'll start with the report, right? So I wanted a weekly, right? So a weekly is a categorical column, right? So it will be added into group by, so you can search also. So we weekly, right? The second one was staff wise. I want a weekly staff wise. Staff is also categorical column, right? So we'll select the staff wise. And the third one was payment wise, right? So I will select payment method wise, right? So I want a 3 column in group by. In the summarize, I wanted a total invoice amount. Let's say I want a gross sale amount, right? So this will come into summarize, because this value can be multiplied, sum, add. You can do anything on in these values, right? And this value actually you want as a data, so it will be come into summarize column, right? And I will just select a discount amount also, right? So I added into group by and into summarize. So you will have a 5 columns, and then you select a date. I want for previous month. I have selected the date, and I will show the preview, right? Once you select everything, you have to click on the show preview to generate a report, and you will have a report. You can see everything is here. So the week is here, staff name, payment method, and the 2 columns from summarize, right? ओके, गोयल सर, आपको समझ आ गया कि मैं फिर से हिंदी में बता दूं एक बार? ओके, तो हमने वीकली स्टाफ वाइज और पेमेंट मेथड अपने ग्रुप बाय में लिया है, ग्रोस सेल अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट जिसका हमने सम किया है टोटल का, उसको हमने समराइज में लिया है। हमने लास्ट 1 मंथ का डेट रेंज लिया है, टाइम रेंज, और हमने प्रीव्यू करके रिपोर्ट को जनरेट Sir, किया है। आपका voice break हो रहा है, sir. हेलो, नहीं हो ऑडिबल है. ओके मैम, लुक्स लाइक, या, Yes. 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 okay, and the There is recording will be sometimes also, ma'am, listening recording content will be will be also breaking. available after the meeting, so you can check that also, right? Okay, so now we will add the filters, right? So let's say we have the payment methods right here, and we have the UPI, cash, credit, and everything. Let's say I want to exclude the credits bills, the bills which were made in credit. जो उधार में जो मेरे बिल बने थे वो मुझे निकालने हैं, वो मुझे नहीं चाहिए. Then I will select the credit option. I will select the exclude, and I will apply, right? And once you change anything from the group by column or from the summarize, or you can you add or remove the filter, or you change the date, then make sure to show the preview again, right? Because once you change anything, the data will be changed, so you have to preview the new data again. So let's say right now here is a save button, right? And I just change the date, right? So you can see now the button is so preview, so you have to preview the data again because the data is changed. So make sure you click the preview again, right? And here you can see the payment method, the credit bills are gone, right? Because I have excluded the credit. You can see, right? Now we'll try to include something. So I just want some details of some of the staffs, right? So I'll just select Chanvi and Mohit and Umeed, let's say. Okay, Michelle. Okay,
and I will include these three staffs. Okay, and I will apply. Hello. Okay. So the records are only of Janvi, Mohit, and Michelle because I only selected those three staffs, right? And the credit bills are gone because I've excluded those bills, those payment methods of bills, right? So this was how you create a report, right? Now you can change the orders also, right? So I want this discount amount before the gross sale amount, right? So I'll just change the order. Okay. Now I will click on show preview again. Sometimes. Let me create a new one. Hello. Am I audible? Yes, Pujan. Okay. Sorry. Yes, sir. Weekly staff wise, payment method wise, and wholesale amount, discount amount, right? Uh, okay. Okay. So I was just showing the you can change the orders also, right? So I'll just put the discount amount before the gross sale amount, right? And just now the discount amount is before the gross sale amount, right? Now, once you create this report, right, you have to save the report, right? Because once you create this, you add the group by columns, summarize columns, you apply the filters and everything. Let's apply the filters also. Uh, so I'll just exclude. Okay. Hmm. And you can download this report here, right? You can download in Excel and CSV, or you can save the report, right? You can change the name also. We are suggesting the name from ourselves, but you can change also, right? I will just keep it here as it is, and I'm just saving the report. Okay. So once you save the report, the options will be changed, right? Okay. So how you can access the saved report, right?
So I've just saved this report, weekly staff payment summary report, and it is available in this report section under the infinity reports. And I'll just select the report and it is here. So whatever the details I've saved in the group by, summarize and payment method and everything is as it is. After the saving, I can open the report and I can check the data anytime, right? So here the date will also be changed automatically. So if you have selected the previous month or this month, let's say you select the this month, right? And right now it's August and you save the report. So if you open into September, the data will be of the September because the here it is a relative, right? So if you select this week, right, and if you're opening after 3 weeks, right, it will take the whatever week you are opening the report, right? And if you want the fixed date range, you can select the absolute also. Here you can select the custom range and it is absolute. So whenever you open the report after 1 year, 2 year, these dates will not be changed because it is absolute, right? I hope I'm clear on this. Okay, so I'll just give you one report here, right? We'll create one report together, right? Before that, if you have any query, अगर किसी को इसमें query है, हम एक रिपोर्ट अभी साथ में बनाएंगे आपके साथ, मैं आपसे आप ही मुझे हेल्प करेंगे बनाने में, लेकिन उससे पहले इतना जो हमने किया उसमें किसी को भी क्वेरी है तो मुझे पूछ सकता है. इफ यू हैव एनी क्वेरीज टिल नाउ प्लीज आस्क मी. यस सर. पूजन जी, यस सर. इसमें जो रिपोर्ट हम बनाते हैं उसमें ये कैसे पता लगता है हमें कि कौन से फील्ड है इसके अंदर जो जिस फील्ड को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं? सिर्फ टाइप करके हमें निकालना होता है? हाँ सर, यू कैन आप उसको सर्च कर सकते हैं वहाँ पे. अभी हमने काफी फील्ड्स दिए हैं लेकिन अभी भी थोड़े लिमिटेड फील्ड्स है, ठीक है. तो इसका आज की मीटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप एक बार इसको देखें और आप अपनी तरफ से हमें कुछ आइडियाज थे, सजेशंस थे कि आपको और कौन से फील्ड्स चाहिए, राइट? सो हम उसको ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में. इसमें फील्ड्स ऐड होते जाएंगे आपको जैसे भी चाहिए वैसे. तो अभी जितने फील्ड है वो शो कर रहा है क्या इसमें? मैं भी थोड़ा शुरू में देख नहीं पाया था. हाँ सर, कर रहा है ना. आप किसी भी बॉक्स में क्लिक कीजिए तो वहाँ एक ऑप्शन ओपन होगा ड्रॉप डाउन का. अच्छा. हाँ, और आप सर्च भी कर सकते हैं वहाँ पे. Pujan, हाँ सर. when we select any criteria, तो can the column name be changed? Edit हो सकता है? यस सर, कॉलम नेम आपको एडिट करना है वो हो जाएगा. अभी नहीं हो रहा है, बट इन फ्यूचर अपडेट्स इट विल बी देयर. वी हैव दैट इन आवर माइंड आल्सो. Yes. Also, I saw one thing कि current stock in loose is showing a rupee icon. Yeah, it has You a can see rupee sign. through Yes, that also. that's a glitch from our side. It will be fixed also. Okay. Yeah. Yes sir. Sandeep Kumar sir. Yeah, Pujan. I have only one doubt. Is it this features is available for everyone? Is otherwise in Sahai registered persons only? Sir, we can. I will give you information after the meeting. Right now, you can create report. You can try it out. If you have Sahai or not, it is available in your account. You can create report and you can try. But sorry. Actually, my account is showing it's waiting for approval in Sahai. No, sir. It's just go to the reports page once. It will be there. Okay. Thank you. Yeah. Yes. Yes. There's a local business. हेलो. Yes, sir. सर मैं ये बोल रहा था जैसा अभी कुछ बिल जैसा अभी कुछ एडिट हुआ है या क्रेडिट आया है जो एडिट हुआ है उसका कुछ रिपोर्ट निकालने का कुछ ऑप्शन है क्या? जैसे सेल बिल कुछ एडिट हुआ है तो लास्ट कौन से स्टाफ ने कौन सा सेल बिल को एडिट किया है तो स्टाफ वाइज वो रिपोर्ट. हाँ सर, हो जाएगा सर अवेलेबल वो. एक और जैसा क्रेडिट ऑलरेडी ड्यू अमाउंट है और उसको ड्यू को हमने बदला है यूपीआई में तो वो एक महीने में कौन कौन लोगों ने क्या क्या बदला है वो वैसे उस टाइप का रिपोर्ट. हाँ सर, आपको जैसा भी चाहिए वो हो जाएगा. हम उसके मुताबिक जो भी
फील्ड्स चाहिए होगी डेटा वो ऐड कर देंगे और आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे तब. ओके ओके सर, थैंक यू. Yes. So, sir, sorry for that, but नेक्स्ट क्वेश्चंस लेने से पहले हम एक बार एक और रिपोर्ट बना देते हैं आपके साथ, तो थोड़ा और पता चलेगा, राइट? बिफोर टेकिंग एनी क्वेश्चंस, we'll just create another report with your help, so you get the idea also how it works, right? Okay. So, okay. We'll create one report in a purchase, right? And I will need your help from you, right? In a selection of columns and everything, right? So what I want is, I'm just writing in the comment, weekly distributors wise purchase for last month. Okay, so I'm generating this report. I have pinned it in comment section. I'm generating this report, right? And I'm hoping that you can give me the columns. What columns should I pick, right? So in first, if anyone wants to tell me which column will go, अगर किसी को कोई बताना चाहेगा तो. मुझे ये रिपोर्ट बनाना है वीकली डिस्ट्रीब्यूटर वाइज परचेस फॉर लास्ट मंथ, और मैंने सिलेक्ट किया है परचेस का सेक्शन. तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँ सबसे पहले? एनीवन? पार्टी सेलेक्ट करेंगे ना सर पहले. ओके, ठीक है. सबसे पहले वीकली जाएगा, बराबर है. अभी दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर वाइज है, ठीक है. तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर वाइज है, तो वो कहाँ पे आएगा? तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका डिटेल है, तो वो कहाँ पे आएगा? ग्रुप बाय में या समरी में? यस सर, ग्रुप बाय में आएगा, राइट? सर सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूट हो सर आप. राजेश जी आप म्यूट हो. हाँ सर, ग्रुप बाय. ओके राइट, ग्रुप बाय में आएगा, क्योंकि ये जो डिटेल है वो कैटेगरिकल है. मतलब इसमें मैं कुछ ऑपरेशन या ऐसा नहीं कर सकता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ठीक है. अभी तीसरा है वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूटर वाइज परचेस, ठीक है. तो अभी परचेस का डिटेल्स कहाँ पे आएगा? मुझे परचेस में मैं क्या ले सकता हूँ? तो मैं ले सकता हूँ टोटल पीटीआर है, पीटीआर वाइज ले सकता हूँ मैं, टोटल एमआरपी वाइज ले सकता हूँ मैं, टोटल बेस प्राइस वाइज ले सकता हूँ, ठीक है. तो वो कहाँ पे आएगा? समरी में, राइट? क्योंकि उस पर मैं ऑपरेशंस कर सकता हूँ, मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं उसका सम कर सकता हूँ, ठीक है. तो मैं अभी यहाँ पे पीटीआर ले रहा हूँ और एमआरपी ले रहा हूँ, ठीक है. अभी मुझे चाहिए लास्ट मंथ का, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके प्रीवियस मंथ सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और शो प्रीव्यू. मेरा डेटा आ गया, बराबर है. अभी कुछ फिल्टर्स ट्राई करती है, किसी को कोई फिल्टर सजेशन करना है मुझे तो कर सकते हैं वो. ये सजेशन सर ये सेव करेंगे तो अगर दोबारा से देखना होगा तो इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो जाएंगे ना? आप कह रहे हैं इसको पहले सेव कर लें, सेव जरूर करें. मैं बताता हूँ सर 2 मिनट में, इसके बाद फिर से उसको दोहराता हूँ मैं. ठीक है. ओके, सो फिल्टर बारे में किसी को कुछ सजेशन देना है, किसी को कुछ ट्राई करना है तो चलो जैसे मैं ट्राई करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर का फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है. अभी ये जो फिल्टर है, यहाँ पे मुझे चाहिए जो साहा एंड कंपनी दिख रहा है, ये जो फर्स्ट वाला है मेरा डिस्ट्रीब्यूटर साहा एंड कंपनी, उसका रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसके अलावा सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, ठीक है. देन व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट सर्च फॉर साहा एंड कंपनी, आई विल सिलेक्ट द साहा एंड कंपनी एंड आई विल एक्सक्लूड एंड अप्लाई, राइट, एंड शो प्रीव्यू, राइट. सो मैंने क्या किया, मैंने साहा एंड कंपनी का जो भी डेटा है वो मैंने निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया. तो यहाँ पे आपको साहा एंड कंपनी नहीं दिखेगा, ठीक है. आप सर्च, आपको जब ऐसा कोई हो
जैसे मेडिसिन है या डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, तो उसको आपको सर्च करना होगा उसके डेटा को पहले। जैसे अभी मैं ये फोकस करके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी मुझे निकालना है, तो उसके लिए मुझे सर्च करना पड़ेगा। जैसे आप परचेस में जाके सर्च करते हैं वैसे ही सर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सॉरी, ठीक है, और उसको फिर से एक्सक्लूड किया, ऑलरेडी है। तो फोकस वाला निकल गया, राइट। सेम मेडिसिन में भी है। if you want to exclude or include some manufacturers, then you can search for that manufacturer. We will give you suggestions. You can select those manufacturer, you can include or exclude, apply, and data will be generated according to that, right? Now मैं आपको बता रहा था कि सेव का, ठीक है। तो मैंने ये डेटा एक बार आएगा, सॉरी, ओके। सो सर, आपने ये जो रिपोर्ट अभी जनरेट किया है, ठीक है, ये टेम्पररी रिपोर्ट है। दिस इज द टेम्पररी रिपोर्ट। इट इज नॉट सेव्ड इन द our database or in your system, right? So whenever you want to create the report for long term that you want to access daily or weekly, right, then you should save the report, right? So once you save the report, एक बार आप इसको सेव करोगे, ठीक है, तो हम इसको हमारे डेटाबेस में डाल देंगे, आपके अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है, और आप उसको रिपोर्ट सेक्शन में से एक्सेस कर सकते हो फिर से, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपने जैसा भी डेटा आपने जैसा भी बनाया होगा, जितनी कॉलम्स ली होगी, जितने फिल्टर्स अप्लाई किए होंगे, सबके सब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आप टेम्पररी रिपोर्ट को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज अभी तुरंत जाननी है, उसके बाद आपको उसका कुछ यूज नहीं करना है, तो उसको आप सेव नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसको सीधा डाउनलोड कर सकते हो और सेव नहीं करना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू विल वांट टू यूज डेली, वीकली, इन फ्यूचर आल्सो, राइट, देन यू शुड सेव द रिपोर्ट, सो यू डोंट हैव टू क्रिएट द रिपोर्ट अगेन, राइट। एम आई क्लियर नाउ सर? समझ आप अभी क्लियर हो गया? यस सर। अजय सर। सर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये अगर दोबारा फिर किसी आप कह रहे हैं सेव कर लें, हाँ, तो दोबारा अगर मैं जाता हूँ सिस्टम पे और मैं डेट्स को चेंज करता हूँ, और वो बीच में जो मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो उससे पहले की डेट और उससे आगे तक का जो पीरियड मैंने डाला है, तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हाँ, नहीं होगी दिक्कत। आपने अगर एक बार सेव किया, राइट, और आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये सेव किया है रिपोर्ट, ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस मंथ था, अभी मैं दिस मंथ करता हूँ, देखो सर, तो ये शो प्रीव्यू का बटन आ गया फिर से। हाँ, नहीं इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आज की डेट है और अभी मैंने ले लिया डाटा, अगस्त का ले लिया, हाँ, किसी पार्टी का, और मतलब कि दो पार्टियों का, दो मैन्युफैक्चरर का ले लिया, मैं अगस्त में, और अगला महीना आ जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ जाएगा, तो मैं हाँ, सितंबर में 15 सितंबर का और 1 अगस्त का दोबारा से फाइल बना ले सकता हूँ ना? हाँ सर, कर सकते हो आप, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। उसको भी सेव कर सकता हूँ टाइम उसको भी सेव पीरियड? कर सकते हो। हाँ हाँ ठीक सर, है, सेव कर सकते हो। थैंक यू। हाँ, ओके। Yes, Padmat sir, we can also add a bill count. Total bills created we can add. Okay, so it is not available in purchase, but it's available in sales. वो सेल्स में है, परचेस में भी आ जाएगा कि कितने बिल्स बने हैं, उसका काउंट भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, राइट। Okay, so if you can create a report in your system, आपके सभी में वो ऑन हो गया है, ठीक है, आपने सभी ने एक्सेस कर लिया होगा, आई थिंक अभी तक देख लिया होगा, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन रिपोर्ट टू क्रिएट, सो दैट यू कैन हैव अ प्रैक्टिस ऑल्सो। और आपको कोई क्वेश्चन है तो अभी भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आई एम एडिंग इन टू कमेंट बॉक्स। यस सर, यस गोविल जी। पूजन भाई, मैं ये पूछ रहा था, जब वहाँ पे रिपोर्ट हम सेव कर लेंगे तो ये बहुत सारी रिपोर्ट नहीं हो जाएंगी वहाँ पे? अगर वहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन भी रहेगा फिर? हाँ सर, है, ऑलरेडी डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक है, अदरवाइज जिन रिपोर्ट को टेम्परेरी देखना है वो ऊपर देख लो, और जिनको Yes. परमानेंट आपको बनाना है वो एक तरह से कस्टमाइज रिपोर्ट हो गई आपकी। यस सर, यस।
और फिर उसको हमें हमें अलग तरह की रिपोर्ट बनानी तो वहां से डिलीट कर सकते हैं उसको। हाँ तो सर मैंने एक यहाँ पे कमेंट में लिखा है एक रिपोर्ट, ठीक है। अगर आप अपने सिस्टम में आप सब इफ यू ऑल कैन क्रिएट दिस रिपोर्ट राइट, सो वी गेट द आइडिया दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेसिंग। और अगर आपको हाँ मैं अभी एक्सेस कर लेता हूँ। हाँ तो मैंने लिखा है कि डेली बिल्स क्रिएटेड बाय स्टाफ फॉर प्रीवियस मंथ, ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। ट्राई कीजिए आप सर, और किसी को भी बीच में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यस संजय सर। भूजन भाई, यस सर। एक HMM में अभी थोड़ी देर पहले आया, इसके लिए मेरे आधी जानकारी है, पर मैं बात पूछना चाहता हूँ कि मुझे हर मंथ बैंक वाले को एक रिपोर्ट देना पड़ता है, तो इसमें कैसे आ सकता है मेरा परचेस रिपोर्ट या जो 3 या 4 पेज में कंपनी वाइज आ जाए, ऐसा कुछ है? हाँ सर मुझे बताइए रिपोर्ट कैसा होता है। जैसे हम लोग हमारा जो स्टॉक है वो हर महीने बैंक वाले को देना पड़ता है हमें, तो मैं किस तरीके से बता सकता हूँ कि जिसकी वजह से मैं सही जाऊँ? सो मैन्युफैक्चर वाइज स्टॉक आपको चाहिए सर, ऐसा है? मैन्युफैक्चरिंग वाइज स्टॉक चाहिए। वो है ना सर, मैन्युफैक्चर वाइज स्टॉक है। सॉरी मैं बीच में आया था, उसकी वजह से मेरे को मालूम नहीं। कोई बात नहीं सर। सर आप परचेस में जाके परचेस में एक मिनट भूजन भाई, मैं रिपोर्ट में निकालता हूँ, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, इसमें परचेस और परचेस रिटर्न दोनों में जाऊँ या नहीं? आप एक काम कीजिए सर, इन्वेंटरी में चले जाइए। सॉरी आइटम लेजर होगा, आइटम लेजर करके वहाँ पे चले जाइए। आइटम एंड पार्टी लेजर, हाँ वहाँ पे इन्वेंटरी का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैन्युफैक्चर आएगा और यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू आएगा, और फिर आप क्रिएट कर दीजिए, हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर का दो? नहीं मैन्युफैक्चरर, आपको कंपनी वाइज चाहिए ना? हाँ कंपनी वाइज। तो एक मिनट, मुझे क्यों शायद मैं गलत जगह पे गया हूँ। मैं किस में जाऊँ? आइटम एंड पार्टी लेजर में जाऊँ ना? हाँ आइटम एंड पार्टी लेजर, उसमें इन्वेंटरी में। एक मिनट, हाँ मैं गया, इन्वेंट्री में जाऊँ ना? हाँ इन्वेंट्री में गया, हाँ वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए मैन्युफैक्चरर। हाँ और साइड में आपको, और फिर दूसरे बॉक्स में आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो PTR या जो भी MRP वाइज। पैक साइज, या पैक साइज की जरूरत नहीं है। सेकंड में गया, स्टॉक लिखूँ या PTR लिखूँ? आपको जो भी चाहिए सर, PTR वाइज चाहिए तो भी चलेगा यार, और हाँ सर। एवरेज मैक्सिमम लिखूँ या मिनिमम, किस तरीके से? सम सर पहला ऑप्शन। ओके सम, हाँ और फिर मैं शो प्रीव्यू। हाँ यस सर, सुरेश सर। सो चेक कर लेता हूँ। So once you successfully clear the report, just let me know in the comment box, in chat box, right? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइए मुझे। आपने क्रिएट कर दिया है तो सिर्फ चैट में लिख दीजिए क्रिएटेड, से मुझे पता चले। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है रिपोर्ट बनाने में, या कुछ लोड नहीं हो रहा है डेटा, ऐसा कुछ आ रहा है तो भी मुझे बताइए प्लीज। यस अजय सर। जैसे विनोद जी शायद बी से आ रहा है, तो विवेक जी जैसे पूछने क्रिएटेड हो गया उनका, कंग्रेचुलेशन टू विवेक जी। और पूंजी अच्छा है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं बैंक को देने वाला, तो ऐसा सिस्टम तो हम कहीं और से भी ले सकते हैं ना सर, टोटल भी ले सकते हैं इकट्ठा, उससे मैन्युफैक्चरर ना लेकर के जितना भी स्टॉक है, खाली स्टॉक को भी तो ले सकते हैं हम। हाँ सर आप कैसे भी ले सकते हो, कोई तो प्रॉब्लम नहीं उसके है। आगे चाहे तो जितने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, जैसे मान लो स्टॉक लेना है तो स्टॉक में हमें बिलिंग किसका है, मैन्युफैक्चरिंग किसका है, और इस तरह से भी 4-5 हेडर बना सकते हैं ना उसमें। हाँ सर आप जैसा भी चाहे, जो भी करना और चाहे वो हम प्रिंट आउट बैंक को दे सकते हैं, ताकि उनको ये रहे कि इस महीने का हमारे पास ये इतने रुपए की वैल्यू का स्टॉक है, और इस बिल्डर इससे बिलिंग है, और इससे ये कंपनी है, और इसकी इतनी शीशी यहाँ पड़ी हुई है, इसका MRP ये है, और इसका PTR ये है, जो जो हम सिलेक्ट करेंगे, राइट ना? हाँ सर कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है सर, गुड। हाँ पूजन भाई, मैंने चेक किया, मैन्युफैक्चरिंग लिया मैंने, पर इसके अंदर आज के दिन का याद दिखा रहा है। आज के दिन का डेटा दिखा रहा है? हाँ, जैसे मुझे मंथली या ईयरली चाहिए, मंथली चाहिए मेरे को,
तो मंथली कैसे करना वो मेरे शायद मेरे ध्यान में सर नहीं आया हो। सर हम बाद में कनेक्ट हो जाए, एक बार मैं आपको मीटिंग खत्म होने के बाद कॉल करता हूँ, ऐसा है तो हाँ हो जाएगा। हाँ 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 सर, ओके सर, ओके पद्मज सर, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। विवेक सर, ओके ग्रेट। बाकी सबको किसी को प्रॉब्लम आ रहा है रिपोर्ट में कि बन रहा है? अगर हो जाता है तो भाई उसको सेव। सेकंड ये समराइज वाले में कौन से फील्ड के लिए बोला है आपने? डेली बिल्स क्या? क्रिएटेड सर, उसमें आप कुछ भी ले सकते हो। डेली बिल्स में आपको टोटल कितने रुपीस का बना है, कितना डिस्काउंट दिया है उसने, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा अच्छा। हाँ यस हाँ यस राजेश सर। हेलो। यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरे को कंपनी और प्रोडक्ट का परचेस चाहिए, वो मिलेगा? कितनी ये कंपनी का कितना प्रोडक्ट परचेस किया है वो मिलेगा कंपनी वाइज? हाँ सर मिल जाएगा। वो कैसे मिल सकता है? सर उसका डिटेल में आपको ऐसा है तो हम फिर से कॉल करते हैं, क्योंकि अभी सबको एक बार समझ आ जाए। ठीक है, आप कोई स्पेसिफिक इश्यू है, अगर आपको स्पेसिफिक रिपोर्ट रिक्वेस्ट है, आपको कंफ्यूजन है, तो हम आपका अभी लिस्ट बना रहे हैं हम सबका, हम आपको पर्सनली ऐसा है तो ठीक कॉल है कर देंगे। ठीक है ठीक है, मेरा पॉइंट लिख के रखता हूँ उसे। ठीक है। यस सर। ओके। और किसी का नहीं बना है रिपोर्ट? सिर्फ 2 लोगों का ही है? किसी को प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कुछ आ रहा है या फिर? ओके, सो आपने जिन्होंने भी बनाया है उसको सेव भी कर दीजिए एक बार, और ट्राई कर लीजिए एक बार कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं। सर अलर्ट का हम नेक्स्ट मीटिंग में रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा हो गया है। तो ऐसा है तो अलर्ट्स का हम नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द अलर्ट्स, हाउ टू सेट, राइट? बिकॉज दैट विल आल्सो टेक अ टाइम। ओके। ओके, सो किसी को प्रॉब्लम आ रहा है बनाने में या सबका बन गया है तो एक बार सेव कर लीजिए। ठीक है। एंड इफ यू हैव अ स्पेसिफिक रिपोर्ट रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट रिक्वेस्ट है तो आप उसको अभी चैट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसका लिस्ट बना के रखते हैं। तो उसके लिए जो भी डेटा चाहिए, फील्ड्स चाहिए, दैट वी विल ऐड फॉर नेक्स्ट। ओके, सो अब सब बना थे, तब मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, हाउ यू कैन यूज द रिपोर्ट्स in different use cases, right? So you can use it for your business performance or overview, how much sales you are generating, how much purchase you are taking, right? For business performance you can use this. You can also use it for performance, for employees, track the performance of employees. You can check how much bills are they are making, how much amount of business they are doing, everything, right? The third one is you can check the outside parties, right? Your B2B customers, your normal customers, or your distributors, you can get the data, right?
Then you can also track the unwanted activities. Let's say you want to make sure that no one gives more than 1,000 rupees of credit for a single day from your staff, right? So you can create a report, like daily staff wise total credits, and if someone gives more than 1,000 rupees of credit, you can track those things. So you can track unwanted activities also, right? You can use this in customer relationship management also. If you want to check how many credits are there, or if you want to give a discount for your regular customers, you can generate the data, right? Okay, so these were the some examples that you can use the Infinite reports. You can create report. Okay. Okay, Vivek sir. आप अपने आप से बना सकते हो रिपोर्ट, लेकिन आपको कभी उसमें प्रॉब्लम आए तो आप जानवी को या फिर किसी सेल्स पर्सन को या सपोर्ट पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो कि मुझे ये रिपोर्ट बनाना है एंड आई एम हैविंग प्रॉब्लम और आई एम कंफ्यूज, सो विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। हम आपको हेल्प करने में करके आपको बना के देंगे रिपोर्ट। कभी भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। Thank you, sir. Yes, yes, yes. Yes, sir. You have any question? Sanjay sir. Yes. Okay. जो भी आप join हुए हैं, everyone who has joined, we will also conduct the next workshop for the Infinity reports, where we'll give you the updates for next, and we'll also yes, yes. And it says 2 minutes, sir. In the next workshop, we'll teach you how to set a alert, right? अब जो next workshop होगा, उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। उसमें हम अलर्ट्स कैसे सेट करेंगे इस पर, उसके रिलेटेड हम बताएंगे आपको। सो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट ऑल्सो। नेक्स्ट हम जब वर्कशॉप हो तो उसको आप ज्वाइन करें, मेक श्योर करें, और जो भी अपडेट्स है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और अलर्ट्स का आपको पता चल जाएगा। यस विवेक सर, that will also available in next phase. You can basically get all the branches data at your HO. It's in working. Thank you, sir. Okay, so if you have a Sahay already in your account, you can create unlimited reports, how many you want,
You can set also unlimited alerts, and if you don't have Sahay, you can create and save 3 reports, right? You can create and save 3 reports. After that you can check new reports, right? But you cannot just save the report. अगर आपके पास सहाय है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अनलिमिटेड रिपोर्ट्स, अनलिमिटेड अलर्ट्स। और अगर आपके पास सहाय नहीं है तो अभी के लिए आप 3 रिपोर्ट्स जनरेट करके मैक्सिमम 3 रिपोर्ट्स को सेव कर सकते हो, राइट? लेकिन उसके बाद आप 4th रिपोर्ट्स को सेव नहीं कर सकते हो, लेकिन टेम्पररी डेटा कितने भी रिपोर्ट्स का देख सकते हो, वो सबके लिए ओपन है। Yes, you can preview the data, but you cannot save more than 3 without Sahay. Alerts is also will be also available if you don't have Sahay, but only maximum 3 reports for save. जानवी, मैं जानना चाहता हूँ इसमें, अगर मेरे को विदाउट डिस्काउंट की रिपोर्ट देखनी है, मतलब कस्टमर की रिपोर्ट देखनी है मुझे, सेल रिपोर्ट, और उसमें बिफोर डिस्काउंट उसका जो अमाउंट था वो कैसे देखेंगे? एमआरपी सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे उसमें? हाँ सर, एमआरपी सिलेक्ट करेंगे, टोटल एमआरपी। बिफोर डिस्काउंट आ जाएगा उससे पहले, है ना डेटा? हाँ सर। ओके। For what? This discount thing? No, I think सर आप ट्राई कीजिए ना सर, सेल्स में जाके एमआरपी का और डिस्काउंट का कॉलम सिलेक्ट करके, ऐसा है तो। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ सर। So we'll end the meeting at 5. We still have 5 minutes. अगर आपको किसी को और कुछ कंफ्यूजन है तो 5 मिनट तक है, तब ट्राई कर सकते हैं कुछ भी। इसमें एमआरपी का कॉलम तो सेलेक्ट नहीं हो रहा, एमआरपी आ तो रही है लेकिन उसमें सेलेक्ट नहीं हो रहा वो। सर आपने ग्रुप बाय में कौन सा लिया है? ग्रुप बाय फर्स्ट वाला कॉलम हुआ ना? हाँ, उसमें पेशेंट मोबाइल नंबर, डेली और बिल नंबर। ओके। बिल नंबर और डेट में डेली ले लिया, और पेशेंट का मोबाइल नंबर। और समरी में जाके मैं डिस्काउंट अमाउंट के नीचे एमआरपी देख रहा हूँ, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो रहा। ओके। ओके, सो एक चीज है कि हम थोड़े जो कॉलम्स है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि कुछ ऐसा डेटा होता है कि जो बिल लेवल पे होता है, और कुछ ऐसा डेटा होता है जो बिल के अंदर जो आइटम है उसके लेवल पे होता है, ठीक है? तो अगर आप आइटम का कुछ सिलेक्ट करते हो तो आप बिल का सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? ऐसा इसलिए कुछ कॉलम्स ब्लॉक होते हैं। लेकिन सर आप जो बता रहे हैं, अगर वो ब्लॉक है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसको फिक्स कर देंगे कि आपको हाँ, ये तो होना चाहिए, बिल वाइज तो होना चाहिए ना। हाँ वो सर होना चाहिए, डेली बिल नंबर। सर एक बार आप डेली बिल नंबर करके करो ना, पेशेंट मोबाइल के डाले बिना। मोबाइल नंबर हटा के? हाँ। फिर वो मतलब की रिपोर्ट नहीं रह जाएगी, अगर आ भी जाएगा तो भी नहीं आ रहा? डेली और बिल नंबर में नहीं आ रहा है? नहीं, डेली बिल नंबर में नहीं आ रहा है। एक सेकंड। और डेली और डिस्काउंट अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट, इसमें कुछ हो सकता है? हाँ सर, ऊपर मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। ओके। सो इन द सेल्स, राइट? सेल्स, ओके। मैंने सिलेक्ट किया डेली, और
बिल नंबर, राइट? हाँ ओके, एमआरपी दिख रहा है सर, एक बार एक फिर से बाहर जाके ट्राई कीजिए, एमआरपी आएगा। और सम मैक्सिमम मैं आपको समझा देता हूँ सर क्या है। सो दिस इज एग्रीगेशन बेसिकली। अगर आप इफ यू आर सिलेक्टिंग अ डेली, राइट, एंड यू हैव अ 50 bills for one day, right, and you want to select the maximum discount given in particular bill, आपको देखना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हो, राइट, बट 99% ऑफ द टाइम वी विल सिलेक्टिंग सम, सो बेसिकली उसका टोटल, अगर 50 बिल है तो उसका टोटल, ठीक है? बट इफ यू वांट टू गेट अ मैक्सिमम देन यू कैन सिलेक्ट अ मैक्सिमम आल्सो, मिनिमम, एवरेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो वी हैव गिवन द ऑप्शन, बट in the most of the cases we will using a sum, so I'm selecting the sum for okay, discount also you want, right? Discount amount, okay, for previous week, okay. अब So इसमें this is प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर डिटेल नहीं आ रही ना मेरे पास। okay, एक काम करते हैं हम, build for ट्राई करते हैं, ठीक है? एक बार पेशेंट मोबाइल में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, वो हम फिक्स कर देंगे। हाँ, तो अभी जो हमने समरी में जो एमआरपी सम लिया है, मतलब एमआरपी अमाउंट आएगा उसमें? हाँ, टोटल एमआरपी उसका, और मैं वही डिस्काउंट चाहिए। लेता हूँ, ठीक है? और डिस्काउंट अमाउंट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे अलग अलग? दोनों आ जाएगा, ठीक है? अभी आपको मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे यूज करना है वो अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? लेट्स से यू आर सिलेक्टिंग, यू वांट दैट which staff has given the maximum discount yesterday, right? So you will just select a daily staff wise, right? Here you will just discount amount and we'll select a maximum. ओके, सो किस स्टाफ ने किस डेट पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया है, ठीक है, वो हमें मिलेगा, राइट? सो हियर वी हैव लेट्स से मोहित, राइट, वी हैव नितेश, राइट, वी हैव नितेश। सो उन्होंने 8 जुलाई को 33 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, राइट? लेकिन इसमें हो सकता है कि उन्होंने 8 तारीख को टोटल 10 बिल बनाए हो, बाकी सब में 10-10 रुपए का डिस्काउंट दिया हो, लेकिन इसी पर्टिकुलर एक बिल में उन्होंने 33 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम कितना दिया है। वैसे आप एवरेज भी निकाल सकते हो और टोटल बिल काउंट भी निकाल सकते हो आप। यहाँ पे मैंने बिल नंबर दे दिया और बिल काउंट। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई एग्जांपल है, जैसे कि ये है जानवी करके है, ठीक है? उन्होंने टोटल 7 बिल बनाए, ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक बिल में उन्होंने 35 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, ठीक है? वैसे मैं एवरेज भी निकाल सकता हूँ, सो आप ऐसे भी उसको यूज कर सकते हो, राइट? पर मेरी रिक्वायरमेंट जो है ना वो इस तरह की है, कई लोगों की और भी आ सकती है कि किस किस कस्टमर को कितने कितने रुपए की कितनी सेल हुई। हाँ सर, डिस्काउंट के अमाउंट कितना था उसका? हाँ समझ गया सर, वो नेट सेल अमाउंट है। मोबाइल नंबर, हाँ सर, मोबाइल नंबर फिल्टर नहीं आएगा तब तक वो कंप्लीट रिपोर्ट नहीं होगी। हाँ सर, समझ गया मैं। कस्टमर का को तो हम इसी से डिफाइन करेंगे ना। हो जाएगा सर, हो गया, समझ गया। हाँ, ओके, सो आई थिंक वी विल जस्ट एंड द मीटिंग। इफ आपको अभी किसी को भी डाउट है, इफ एनीवन हैव ए क्वेश्चन कैन आस्क मी, बिकॉज वी विल जस्ट end the call. Okay, thank you sir. Okay, so yes Rajesh sir, mute पे आप सर आप म्यूट पे हो। हेलो, yes sir, you are on mute. हेलो, हाँ सर। हेलो, ये परसेंटेज में डिस्काउंट आएगा सर? हाँ सर, आ जाएगा, परसेंटेज में डिस्काउंट आ जाएगा। हाँ, तो ये बिल पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया वो मिलेगा? वो मिल जाएगा सर, वो भी मिल जाएगा। अभी अवेलेबल नहीं है वो कॉलम,
वो कॉलम अवेलेबल नहीं डेटा है अभी। तो अभी क्या अभी है नहीं है, कि वो अपडेट हो जाएगा। 10% दिया है, 15% दिया है, स्टाफ ने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया वो पता चलेंगे ना। हाँ सर, वो आ जाएगा, हो जाएगा। Okay, so we are ending the call. We'll meet again also after 1 or 2 weeks, right? We will have a new updates also, and we'll teach you how to set an alert and everything, right? So make sure you attend the next workshop also. Okay. And in the meantime, try to make more reports and save the reports, and give us feedback, suggestions, or requests. We are expecting everything, right? Okay, so thank you. Thank you.